بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک فیس بک صارف نے لکھا کہ جب سے میں نے ارطغرل سیریل دیکھنا شروع کیا تب سے میں 5 وقت کا نمازی بن چکا ہوں، جبکہ اس سے پہلے میں کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ ارطغرل غازی سیریل نے مسلمانوں کو مایوسی سے نکالا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے کمنٹس ہیں۔ صارفین کی رائے ہے، آخر کیوں ترکی سلطنت میں اذان پر پابندی لگائی گئی؟ آخر کیوں ترک کے صدر طیب اردگان نے اس سیریل کو اپنی سرپرستی میں بنایا اور اس پر پیسہ خود خرچ کیا؟ اور آخر کیوں پاکستان کے بڑے بڑے علماء اس پر فتویٰ دے رہے ہیں کہ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، اور بہت سے علماء اس کے حق میں بول رہے ہیں؟ اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ پسندیدہ ڈرامہ جو کہ رمضان سے شروع ہو چکا ہے، کس طرح اس نے دھومیں مچا رکھی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح ایک انگریزی جوڑے نے اس ڈرامے کے کریکٹر عبد الرحمان کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا ہے، اور کس طرح ہماری نوجوان نسل اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور کس طرح ہمارے لڑکے اور لڑکیاں جو کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی دیوانی تھی، سلمان خان اور شاہ رخ خان کے دلدادہ تھے، اب محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی اس سیریل کو شروع کیا ہے اور آپ کے اندر بھی اچھا انسان جاگ رہا ہے، تو یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، کیونکہ ہم آپ کو مکمل اس کی تاریخ اور سٹوری اور کہانی بتانے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیر کیے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک سنگ میل ہے جو شاذ و نادر ہی کوئی حاصل کر پاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی یہ سیریل اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، اور پی ٹی وی پر پہلے رمضان سے اس کی ہر قسط آ رہی ہے۔ اقوام عالم بالخصوص مسلمانان عالم اسے پوری شد و مد سے دیکھ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی ایشیا اور یورپ سے لے کر افریقہ تک ارطغرل غازی کا نام زبان زد عام ہو چکا ہے۔ وہ نام جو تاریخ کے پردوں میں دب چکا تھا، آج ہر کسی کی زبان پر ہے۔ مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اب اس نام سے آشنا ہو چکے ہیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی اور عثمان غازی کے والد تھے، جنہوں نے سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد کائی ترکوں کو متحد کیا اور منگولوں کی چیرہ دستیوں سے باقی ترک قبائل کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی اسی کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، جو خود ایک لائق اور باہمت سردار تھے۔ ارطغرل غازی نے 4000 مربع میل پر مشتمل اپنی نیم سلطنت پیچھے چھوڑ دی۔ یہ سلطنت صرف کائی قبیلے پر مشتمل تھی، تاہم بعد میں ان کے بیٹے عثمان غازی نے باقی قبائل کو متحد کر کے اسے 16000 مربع میل تک پہنچایا۔ یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، جو آنے والے وقتوں میں 3 بر اعظموں پر پھیل کر ایک عظیم الشان سلطنت کے طور پر دنیا کی سپر پاور بن گئی اور 600 سال تک ملت اسلامیہ کا دفاع کرتی رہی۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، ارطغرل غازی سیریل میں سلطنت عثمانیہ کی یہی ابتدائی داستان دکھائی گئی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایسی کوشش ہے جس میں کسی مسلمان سلطنت کا اس طرح ذکر کیا گیا ہو۔ اس سیریل کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ امریکہ کے مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ارطغرل غازی دیکھ کر پتہ چلتا ہے اردگان کے عزائم کیا ہیں اور ترکی کس طرف مسلمانوں کو لے کر جا رہا ہے، یکجا کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں، اس سیریل کے حق میں جہاں بے شمار کالم لکھے گئے اور بہت سے علماء نے مثبت اشارے دیے، جس طرح ہمارے علماء مولانا طارق جمیل صاحب نے اس پر بحث مباحثہ کیا، اس کی سٹوری بتائی، اس کی تاریخ سے آشنا کیا مسلمان نوجوانوں کو، اور ایک نیا ولولہ دیا، ایک نئی تڑپ دی، وہیں پر اسے دیکھنے پر ممانعت کے فتوے بھی دیے گئے ہیں بہت سے علماء کی طرف سے۔ ان میں قابل ذکر برصغیر کے مشہور دارالعلوم دیوبند ہندوستان اور دارالافتاء کراچی پاکستان قابل ذکر ہیں۔ ان دونوں داروں نے سیریل کو حرام قرار دیا ہے اور اسے دیکھنے سے اجتناب کرنے کو کہا ہے۔
इन दो अदारों से जारी किए गए फतवे में ये एतराज किया गया है कि ये एक तो सीरियल में नामहरम लड़कियां हैं, दूसरा ये कि वीडियोग्राफी और मौसीकी भी इस्लाम में हराम है, लिहाजा इस सीरियल को देखने की शरअन इजाजत नहीं है। जबकि दारुल उलूम देवबंद के ही एक आलम और मुफ्ती बल्कि मशहूर कालम निगार और मुसन्निफ ने कहा है, मुफ्ती अबुल बाबा शाह मंसूर इस सीरियल के हक में बोल पड़े कि इसे देख सकते हैं क्योंकि इसमें इस्लामी तारीख दिखाई गई है जो कि इस दौरे फितना में एक अहसन काम है। अब जरा आगे चलिए और सोशल मीडिया पर भी नजर डालते चलें, क्योंकि मौजूदा दौर में मसाइल पर सबसे ज्यादा बहस सोशल मीडिया बिलखसूस फेसबुक ट्विटर पर होती है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई शख्स अपनी राय का आजादाना तौर पर इजहार कर सकता है। एक सारिफ ने फेसबुक पर लिखा था कि जब से मैंने इर्तरल सीरियल देखना शुरू किया है तब से मैं 5 वक्त का नमाजी बन चुका हूँ, जबकि इससे पहले मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता था। एक और सारिफ ने लिखा कि इर्तरल गाजी सीरियल ने मुसलमानों को मायूसी से निकाला है। इसी तरह के और भी हजारों सार्फिन ऐसे हैं जो इस सीरियल के हक में बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। इस सीरियल के न सिर्फ मुआशरती फवायद हैं बल्कि ये सीरियल सियासी तौर पर भी बहुत ही मुफीद साबित हो रहा है। जहां एक तरफ ये सीरियल मगरिब की तरफ से की गई तहजीबी यलगार जो कि इस दौर में मीडिया के जरिए सबसे ज्यादा असरअंदाज हो रही है रोकने में मुआवन साबित हो रहा है, वहीं सियासी तौर पर इसके ये फायदे हो रहे हैं कि आलम इस्लाम खिलाफत की बरकतों से आशना हो रहा है जो कि एक अजीम नेमत है। इसी तरह तुर्की में उस्मानी रस्मुल खत जो कि दरअसल अरबी रस्मुल खत है, इसकी वापसी हो रही है। जी हाँ, इस सीरियल में जो खतूत लिखे गए हैं वो असल तुर्की जुबान और अरबी रस्मुल खत में लिखे गए हैं जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में होता था, मगर 1923 में खिलाफत के खात्मे के साथ ही इस रस्मुल खत को खत्म करके अंग्रेजी का रस्मुल खत राइज किया गया। वाज़ा रहे तुर्की जुबान उर्दू, अरबी, फारसी और कश्मीरी जुबान की तरह दाईं जानिब से लिखी जाती है, मगर 1923 से इसे उल्टा करके अंग्रेजी जुबान की तरह बाएं जानिब से लिखना शुरू किया गया और अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किए जाने लगे। 1923 में जब खिलाफत उस्मानिया खत्म की गई तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अरबी रस्मुल खत, अरबी में अजान देने और कुरान पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस वजह से अरबों और तुर्कों के दरमियान नफरत की खलीज पैदा हो गई थी। इस सीरियल की वजह से वो दूरियां भी खत्म हो रही हैं। अगरचा मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और मिस्र में इस सीरियल को देखने पर पाबंदियां आयद की गई हैं, ताहम लाखों अरब नौजवान सोशल मीडिया पर फेसबुक के जरिए इसे देख रहे हैं, जिससे अरब और अजम में मोहब्बत की फिजा बहाल होने में मदद मिलेगी इंशाल्लाह। इस सीरियल की खसूसियत ये भी है कि उम्मत मुसलमा अपने शानदार और ताबनाक माजी से बहरावर हो रही है, जिससे उम्मत पर छाई यासियत और एहसास कमतरी के बादल छट जाएंगे। मौजूदा दौर चूंकि ज़राए अबलाग का दौर है और इन तमाम ज़राए अबलाग पर यहूदियों का कब्जा है जो हर वक्त इस ताक में बैठे रहते हैं कि किस तरह उम्मत मुसलमा का किला कमा किया जाए। ज़राए अबलाग की वजह से यहूदी और मगरबी कुव्वतें उम्मत मुसलमा के अजहान पर सवार हो चुकी हैं। नाउमीदी के इस गटा टोप अंधेरे में जहां पर इस सीरियल की मदद से किसी हद तक जायल हुआ है, वहीं ज़राए अबलाग के मैदान में उम्मत मुसलमा का कामयाबी का पहला झंडा गड़ा है कि हम किसी से कम नहीं। अब जहां तक इस सीरियल पर लगाए गए फतवा की बात है तो ये इस उम्मत के एक या दो तबकों की राय है, जबकि उम्मत मुसलमा में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपना अलग अलग नुक्ता नजर रखते हैं। बकौल सैयद सुलेमान हुसैन नदवी दारुल उलूम देवबंद और दारुल इफ्ता कराची का नुक्ता नजर पूरी मुसलमान कौम का नुक्ता नजर नहीं हो सकता और ना ही दारुल उलूम की राय पूरी उम्मत मुसलमा की राय हो सकती है। बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन्हें कलमा तक याद नहीं है, जो कि मुसलमान होने की पहली शर्त है, ऐसे लोग भी इस ड्रामा पर फतवा जारी कर रहे हैं। लिहाजा इस दौर में अगर आगे बढ़ना है तो दुश्मन की चालें उन्हीं के जरिए उन पर ही उलटना होगी। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान, जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में ये ड्रामा बनवाया है, दुनिया चाहती है कि हम मुसलमान अपनी तारीख पर शर्मिंदगी महसूस करें, मगर हमें अपनी तारीख पर फख्र होना चाहिए कि हमारी तारीख ताबनाक और शानदार है। ऐसा कहना था तुर्क सदर का।
फख्र तो हम तभी कर सकेंगे जब हमें अपनी तारीख पर कड़ी नजर होगी। ये ड्रामा हमारी शानदार तारीख को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तुर्की से फैलने वाला ये सीरियल ख्वासो आम में मकबूल हो चुका है। अभी तक जिन नौजवानों के जहनों पर हॉलीवुड और बॉलीवुड का सरतान चढ़ा था, अब इस्लामी तारीख की जानिब लौट रहे हैं। जो लड़के सलमान खान और शाहरुख खान के दिलदादा थे, अब मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन ज़ियाद को अपना आइडियल मान रहे हैं। जो लड़कियां स्टार प्लस के बेहुदा सीरियल देख देख कर शाहरुख खान और सलमान खान जैसे शोहर का तस्वुर कर रही थी, अब सोमो सलात की पाबंद और आला इखलाक के हामिल नौजवान से शादी करके अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की फिक्र कर रही हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक गैर मुल्की जोड़ा इर्तुगरुल गाजी सीरियल देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने इस सीरियल में अब्दुल रहमान का किरदार अदा करने वाले अदाकार के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। गोया अब ये सीरियल दावत इस्लामी का जरिया भी बन चुका है। जबकि ये भी एक तल्ख हकीकत है कि जिस मैदान में उम्मत मुसलमान सबसे ज्यादा पिटी वो मीडिया का मैदान है, क्योंकि उम्मत के पास कोई मीडिया का आला इंतजाम तो कभी था ही नहीं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि सोई हुई उम्मत करवटें ले रही है, बेदारी की तरफ बढ़ रही है, मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी का इरादा कर रही है, जो कि खुशाइंद बात है। लिहाजा जरूरत है कि फहमो फरासत से काम लिया जाए। मनफी रवैयों के साथ साथ मुस्बत चीजों का ध्यान भी रखा जाए। अगर किसी चीज में मनफी पहलू है मगर मुस्बत पहलू भी है, और अगर ये मुस्बत पहलू मनफी पहलू से कहीं ज्यादा है और फायदा मंद भी, तो वो चीज अच्छी है। और फायदा मंद भी इर्तुगरुल गाजी सीरियल भी इसी जिम्रे में आता है। इसका मनफी पहलू सिर्फ एक है मगर मुस्बत पहलू बहुत ज्यादा है। लिहाजा आप इर्तुगरुल गाजी सीरियल देख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं, फायदे ही फायदे हैं। तो इस सब को लेकर, इस सारी अपडेट्स को लेकर, इस सारी तारीख को लेकर आपका क्या है कहना, और ऐसी ही न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।